আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দীত বৰ্ণ বা আখৰ শিকাম। বৰ্ণ বা আখৰ কাক বোলে, ই কেই प्रकार আৰু के। आज मैं आप लोगों को वर्ण या अक्षर असमिया और हिंदी में सिखाऊंगा। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া আৰু হিন্দীত বৰ্ণ বা আখৰ শিকাম। বৰ্ণ বা আখৰ কাক बोले, ये कई प्रकारों है और की। आज मैं आप लोगों को वर्ण या अक्षर असमिया और हिंदी में सिखाऊंगा। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या। ठीक है दोस्तों, वर्ण या अक्षर। वर्ण मतलब जो जिससे हम भाषा लिखते हैं उसी को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण, उस वर्ण का डेफिनेशन या वर्णन बताऊंगा। অসমীয়াত বৰ্ণ ভাষা লিখোতে যিবিলাক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই চিহ্নবোৰকে বৰ্ণ বা আখৰ বোলা হয়। যেনে স্বৰীয়, স্বৰীয়া, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই আৰু ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি এইবোৰ হ'ল বৰ্ণ বা আখৰ। हिंदी में वर्ण या अक्षर। हिंदी में भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल होता है उन चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई और क, ख, ग, घ इत्यादि ये सारे वर्ण हैं। मतलब भाषा लिखने के लिए इन सब चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, অসমীয়াত বৰ্ণ কাক বোলে, ভাষা লিখোতে যিবিলাক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই চিহ্নবোৰকে বৰ্ণ বা আখৰ বোলে। যেনে স্বৰীয়, স্বৰীয়া, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই আৰু ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি এইবোৰ হ'ল বৰ্ণ। हिंदी में वर्ण या अक्षर। हिंदी में भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल होता है उन चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। অসমীয়াত বৰ্ণ দুই প্ৰকাৰৰ হয়, স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ। স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ। অসমীয়াত বৰ্ণ দুই প্ৰকাৰৰ হয়, স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ। স্বৰবৰ্ণ কাক বোলে বা স্বৰবৰ্ণ কি, যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণত কাৰো সহায় নলোৱাকৈ, যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণত কাৰো সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয় তাকেই স্বৰবৰ্ণ বোলা হয়। যেনে স্বৰীয়, স্বৰীয়া, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই ইত্যাদি। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মানে যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণত কাৰো সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয় তাকেই স্বৰবৰ্ণ বোলা হয়। যেনে স্বৰীয়, স্বৰীয়া, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই ইত্যাদি এইবিলাক হ'ল স্বৰবৰ্ণ। অৰ্থাৎ স্বৰীয় কওঁতে আমি কৰ উচ্চাৰণ নলওঁ, স্বৰীয়া কওঁতে আমি কাৰো সহায় নলওঁ, ই নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয়, তাৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ল স্বৰবৰ্ণ। অসমীয়াত বৰ্ণ দুই প্ৰকাৰৰ হয়, স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ।
স্বৰবৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণত কাৰো সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয় তাকেই স্বৰবৰ্ণ বোলা হয়। যেনে চৰয়া চৰয়া, হস্ৰ দীৰ্ঘ ইত্যাদি। স্বৰবৰ্ণ মানে এই বৰ্ণবোৰ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয়, কাৰো সহায় নলয়। ব্যঞ্জন বৰ্ণ। ব্যঞ্জন বৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰোঁতে স্বৰ বৰ্ণৰ সহায় লৈ উচ্চাৰণ হয়। যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰোঁতে স্বৰ বৰ্ণৰ সহায় লৈ উচ্চাৰণ হয় তাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বোলে বা বোলা হয়। ই নিজে নিজে উচ্চাৰণ হ'ব নোৱাৰে, ই কাৰো সহায় লয় বা ই স্বৰ বৰ্ণৰ সহায় লৈ উচ্চাৰণ হয়। যেনে ক কওঁতে স্বৰৰ উচ্চাৰণ হৈছে, খ কওঁতে স্বৰৰ উচ্চাৰণ হৈছে, অ উচ্চাৰণ হয়, গ কওঁতে অ উচ্চাৰণ হয়। তাৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ, অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লয়। এইবিলাক উচ্চাৰণ কৰোঁতে স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লয়, তাৰ কাৰণে ইয়াক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ব্যঞ্জন বৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰোঁতে স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লৈ উচ্চাৰণ হয় তাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বোলে বা বোলা হয়। ই নিজে নিজে উচ্চাৰণ হ'ব নোৱাৰে, ই স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লৈহে উচ্চাৰণ হয়। যেনে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি এইবিলাক হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ। हिंदी में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण का सहारा न लेते हुए अपने आप उच्चारण होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात यह अपने आप उच्चारण होता है, किसी का सहारा नहीं लेता, इसलिए इसको स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ इत्यादि। अर्थात स्वर वर्ण जो अपने आप उच्चारण होता है, किसी का सहारा नहीं लेता। अ, जैसे अ अपने आप सहारा नहीं लिया, अपने आप उच्चारण हुआ। आ ये भी अपने आप उच्चारण हुआ। ई किसी का सहारा नहीं लिया, इसलिए इसको स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण मतलब जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण का सहारा न लेते हुए अपने आप उच्चारण होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि। व्यंजन वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण उच्चारण के समय स्वर वर्ण का सहारा लेता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात अपने आप उच्चारण नहीं होता, किसी स्वर वर्ण का सहारा लेकर उच्चारण होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह वर्ण अपने आप उच्चारण नहीं हो पाता, यह हमेशा स्वर वर्ण का सहारा लेता है। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। ये जो है, ये अक्षर जो है, ये वर्ण जो है हमेशा स्वर वर्ण का सहारा लेकर उच्चारण हो रहा है। जैसे क कहते हुए अ का उच्चारण आता है, ख कहते हुए आ का उच्चारण आता है, इसलिए इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण का सहारा लेता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण उच्चारण के समय स्वर वर्ण का सहारा लेता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह वर्ण अपने आप उच्चारण नहीं हो पाता, यह हमेशा स्वर वर्ण का सहारा लेता है। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণ আৰু সিহঁতৰ উচ্চাৰণ। অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণ আৰু ইহঁতৰ উচ্চাरण কেনেকৈ হয়? অসমীয়াত उच्चारण और हिंदीत उच्चारण। जैसे सोरेओ को उच्चारण ऐसे लिखते हैं, लाल अक्षर में जो उच्चारण लिखा हुआ है सोरेया। हर्षोई, इसको हर्षोई कहते हैं। असमिया में उच्चारण लिखा हुआ है हर्षोई लाल अक्षर में। जैसे दीर्घोई, असमिया में उच्चारण
लिखा हुआ है दीर्घोई, हर्षोऊ, हर्षोऊ और सोऊ, दीर्घोऊ। दोस्तों आपको अगर असमिया पढ़ना नहीं आता तो इन उच्चारण को देख लेना, अपने आप पढ़ना आ जाएगा। जैसे हर्षोरी, इसको कहते हैं री, हर्षोरी। उसके बाद आएगा ए, इसको कहते हैं ए, और इसको कहेंगे ओई, ओई उच्चारण होगा असमिया में ओई, असमिया में इसका उच्चारण होगा ओ। और औ, औ का ओ कहते हैं, असमिया में इसका उच्चारण होगा ओ, ओ। अंग, अंग, इसको कहते हैं ओह, और इसको अंग। ठीक है दोस्तों, অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণ আৰু সিহঁতৰ উচ্চাৰণ। স্বৰবৰ্ণবোৰৰ उच्चारण हिंदीत लिखी दिया हुई, अर्थात हिंदी में लिखा गया है। स्वर वर्ण भी लिखा गया है असमिया में, असमिया में इनका उच्चारण हिंदी में लिखा गया है। दोस्तों पढ़ोगे तो समझ जाओगे। जैसे सोरेयो, सोरेया, हर्षोई, दीर्घोई, हर्षोऊ, दीर्घोऊ, हर्षोरी, ए, ओई, ओ, औ, औं, ओह, ओं। ठीक है से ये सब स्वर वर्ण है। अब दोस्तों অসমীয়াৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰৰ উচ্চাৰণ। অসমীয়াৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰৰ উচ্চাৰণ আমি হিন্দীত লিখি দেখুৱাম। ব্যঞ্জন বৰ্ণ যেনেকুৱা ক, উচ্চাरण हिंदीत लिखा हुई क, ख, ग। दोस्तों लाल अक्षर में उच्चारण लिखा गया है, जैसे घो, उंगो, उंगो, प्रथम चो, उच्चारण लिखा है दोस्तों लाल अक्षर में प्रथम चो, द्वितीय छो, द्वितीय छो, इसको कहेंगे बोरकाइजो, बोरगाइजो, झो, नियो, नियो, इसको कहेंगे टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य, मूर्धन्य। दोस्तों उच्चारण लिखा हुआ है लाल अक्षर में मूर्धन्य। जैसे तो, इसको दंतायित्तो कहते हैं, दंतायित्तो, थो, दो, धो, दंतायिन्नो, 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 पो, फो, बो। दोस्तों उच्चारण लिखा हुआ है অসমীয়াৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰৰ উচ্চাৰণ। অসমীয়াৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰৰ उच्चारण हिंदीत लिखी देखुआ হৈছে। ठीक है दोस्तों, असमिया में व्यंजन वर्ण का उच्चारण हिंदी में समझाया गया है। जैसे हम असमिया में पढ़ेंगे को, खो, गो, घो, उंगो, प्रथम चो, द्वितीय चो, बोरकाइजो, झो, नियो, टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य, दंतायित्तो, थो, दो, धो, दंतायिन्नो, पो, फो, बो। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह हम पढ़ेंगे असमिया का उच्चारण हिंदी में
जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है, उच्चारण भी लिखा हुआ है और पढ़ के भी मैंने बता दिया। जैसे इसको हम कहेंगे भौ, भौ, मो, उच्चारण मो। 29 तियो जो, इसको कहते हैं 29 तियो जो, 29 तियो जो। पेट काट रो, पेट काटा रो, पेट काटा रो। लो, वाबो, वाबो। तालिबी खो, इसको तालिबी खो कहते हैं। मूर्धन्य खो, मूर्धन्य खो, उच्चारण भी लाल अक्षर में लिखा हुआ है। दोंताय खो, दोंताय खो, हो, खियो, डॉय विनरो, असमिया में डॉय विनरो, उच्चारण लिखा हुआ है दोस्तों लाल अक्षर में। डॉय विनरो, ढॉय सिंद्रो, ढॉय सिंद्रो। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे भो, मो, 29 तियो जो, पेट काटरो, लो, वाबो, तालिबिशो, मूर्धन्य खो, दोंताय खो, हो, खियो, डॉय विनरो, डॉय सिंद्रो। ठीक है दोस्तों, ये स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का उच्चारण है ये, और असमिया में भी उच्चारण हिंदी अक्षर में लिख के समझाया गया है। असमिया का उच्चारण व्यंजन वर्ण का, अर्थात हिंदी में व्यंजन वर्ण, जैसे हिंदी में व्यंजन वर्ण, हिंदी में स्वर वर्ण है। हिंदी में स्वर वर्ण, हिंदी में स्वर वर्ण कैसे लिखते हैं? जैसे कि आ, छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में स्वर वर्ण कैसे लिखते हैं, स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है हिंदी में। तो दोस्तों, जैसे आ, छोटाई, बड़ाई, इसका उच्चारण जैसे ई, सिंपल सा ई होता है, और बड़ाई जो होता है इसका उच्चारण ई, थोड़ा जोर लगा के होगा। ऊ, छोटा ऊ, सिंपल सा उच्चारण होता है। बड़ा ऊ को हम ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। ठीक है दोस्तों, हिंदी में स्वर वर्ण का उच्चारण।